Hello everyone, welcome back to the channel. So let's get on to solving 5 prelims question for day 3 for prelims 2020. Alright, question number 1. An increase in the public debt through domestic borrowings may lead to which of the following in an economy? Alright, number 1, inflation. Number 2, private borrowers crowded out of the financial market. And I mistakenly showed the answer, but let's just stick to it now. Option 3, increase in aggregate demand. So which of these can possibly happen in an economy if government is going for more and more domestic borrowing, and that's how it is incurring public debt? So what is the right answer? 1 and 2, 1 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. Pause a bit, try to think the right answer and try to understand the concept here, and we'll be looking at the answer right now. So as I have already shown, answer is all of these 3 are correct, but how? Now UPSC can make a difficult question from this seemingly simple concept. So basically here public debt is going up through domestic borrowing. It simply means government is incurring expenditure. Why would government borrow? To incur expenditure. So that's how there would be more of expenditure in the economy. So inflation would either way be going up. अगर demand बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा. सप्लाई उतना ही है तो डिमांड सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, दैट्स हाउ देयर वुड बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. दिस इज पॉइंट नंबर 1. सेकंड, प्राइवेट बोरोवर्स क्राउडेड आउट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसा 100 रुपया है सेविंग टोटल इकोनॉमी में, उसमें से अगर 50 गवर्नमेंट ले गया तो प्राइवेट के लिए तो 50 ही बचा. दिस इज हाउ दे वुड बी क्राउडेड आउट ऑफ द सिस्टम. दे वुड बी फोर्स्ड टू गो आउट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है इधर की कैसे वैसे, बस आप इतना ही समझ लीजिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग हियर फॉर जस्ट टू कम अप विद द राइट ऑप्शन थ्रू एलिमिनेशन. सो येस, pie size is the same. Let's say 100 rupee. If government is taking 50, private would be forced to only take 50 rupees. That's it. Otherwise they would have taken 100 because if government was not involved. So that's how private borrowers crowded out of the financial market. Last is increase in aggregate demand. So this is quite simple. इधर बस एक ही चीज़ का याद रखना है हमको. एग्रीगेट डिमांड में 3 कंपोनेंट्स हैं. कंजम्पशन, जो एज एन इंडिविजुअल हम लोग करते हैं, कुछ भी खरीदे. गवर्नमेंट कंजम्पशन करती है जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं. एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट, जो एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा, नॉट एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह से. तो अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट का बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. एंड डोमेस्टिक बोरोइंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट क्यों बोरो करेगी? एक्सपेंडिचर के लिए. सो जी बढ़ रहा है, राइट? दैट्स हाउ देयर वुड बी इंक्रीज इन डिमांड. So that's how we got our answer 1, 2 and 3. So this is it. I do not know how to proceed. Should I be more explanative? Should I be less explanative? Should I be really quick in the explanation? Because there is asymmetric information here. So please let me know in the comment section how we should be proceeding. We should be using both English, Hindi, only Hindi, and I should be going slow, I should be going fast, in whatever way you people want me to. So please do let me know. And either way if it's going fine, then also let me know. I'll not be very thinking about this, how should I be moving with the lecture. Alright, so question number 2 is this. Which of the following statements correctly define the fiscal deficit? Very very simple and important. Alright, fiscal deficit से क्या समझते हैं हम? इन सब स्टेटमेंट्स को पढ़ के इस चीज़ का आंसर देना है. So number 1, excess of total expenditure over revenue receipts and non-debt creating capital receipts. Quite confusing. Try to read it and try to mark your answer here. Is it so? Second is borrowing from RBI abroad as well as net borrowing at home. Alright. Last is excess of government's total expenditure over total receipts. And the last one is both A and B. So fiscal deficit is a very very simple question. Let's try to come up with the explanation now. So here our answer would be D, because here we are talk about fiscal deficit. Number 1, it definitely is excess of total expenditure over receipts. लेकिन receipts में हम borrowings को count नहीं करते. हमको पैसा उधारी वाला नहीं दिखाना है receipts में. So statement 1 is better representation of fiscal deficit because it is categorically stating excess of total expenditure over revenue receipts and non-debt creating capital receipts. Total receipts हैं, लेकिन क्या क्या मिलके टोटल रिसीट्स बनेगा? रेवेन्यू रिसीट से, कैपिटल रिसीट से. कैपिटल में डेट भी आएगा, लेकिन अगर हम डेट नहीं ला रहे बीच में, सो दैट वुड बी अ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल. दैट्स इट. याद रखना है टोटल
फिजिकल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ऑप्शन नंबर 3 में एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स नहीं लिखा, इसीलिए ये गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यही इन्फर कर रहा है बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट टोन। सो येस, इट्स अ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, दैट्स इट। फिजिकल डेफिसिट tells us the borrowing requirement of the government. So option B is categorically stating the same very thing. Borrowings from RBI abroad as well as net borrowing at home. So indeed fiscal deficit would be telling us this very thing. So our answer becomes D, A and B. इधर से एक चीज़ और समझ में आया कि एकदम से फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के उसको टिक नहीं लगा देना है। ऑप्शन ए सही है लेकिन बी भी सही है, इसीलिए आंसर बनेगा डी। दिस इज़ वन थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर। इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है बट अगेन वी हैव एक्सप्लेन व्हाट ऑल दीज डिटेल्स आर। Let's move on to the question number 3, which is with reference to special economic zones, consider the following statements. What are these? Number 1, it refers to specially demarcated territory. ऐसा specially demarcated territory है क्या ये? जिधर टैक्स हॉलीडेज मिलते हैं, एग्जेम्पशंस मिलती हैं फ्रॉम ड्यूटीज़ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इन सब चीज़ों पे एग्जेम्पशन है और आपको टैक्स भी थोड़ा टाइम के लिए नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट टैक्स हॉलीडेज देती है। इज दिस व्हाट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर? नंबर 2, अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप SCG इज टू attract FDI and earn foreign exchange. ये भी क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? मार्क द correct statement here. So it's quite simple. Our answer is either way obvious. It's both 1 and 2 because this is what special economic zones are. गवर्नमेंट उधर हमको टैक्स हॉलीडेज देगी, एग्जेम्पशंस देगी ड्यूटीज़ पे, और ये सब क्यों करेगी? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकें और हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो. So this is quite easy. It was an easy question. So let's move on to the next one, which is question number 4. Which of the following correctly describes the speculative demand for money? Now it's slightly difficult question, but it's important because it was asked in CDS. So number 1, it is the purchasing power of a currency with respect to another for a fixed basket of goods. Quite confusing. बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? इट रेफर्स टू स्पेकुलेशन इन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन द बैंक. वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग. सो पहले सी पढ़ लेते हैं. ये ऐसा पहले पढ़ लेना है सारे ऑप्शंस को, क्योंकि ये ना हो ऑप्शन असली वाला एकदम आसान हो और हम हमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं इतनी चीज़ों को समझने के लिए. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन नंबर सी. इट इज़ द डिमांड फॉर मनी एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ. ऑल राइट. लास्ट इज इट इज़ द डिमांड फॉर करेंसी टू परचेज एसेट्स and real estate for creation of wealth. Indeed a difficult question, but अगर हमको पता है speculative demand for money क्या है तो बहुत easy है, because we know it is the demand for money as a store of wealth. Largely it's a pure economics concept. ज़्यादा सोचने वाली बात इधर है नहीं. कीन्स ने बोला था कि हम मनी का डिमांड क्यों करते हैं? या तो ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए, हम चीज़ें खरीदनी है, बाजार में जाएंगे मार्केट में, वी नीड टू कैरी आउट ट्रांजैक्शन, वी नीड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज व्हाट वी मीन बाय ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. दिस इज पॉइंट नंबर 1. सेकेंडली हमको चाहिए कुछ प्रिकॉशंस के लिए भी, हम बीमार हो सकते हैं कुछ भी, दिस इज प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी. एंड द लास्ट इज एज स्पेकुलेटिव बैलेंस. स्पेकुलेटिव बैलेंस मीन्स हमको पैसा चाहिए क्या फ्यूचर में हम किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकें. सिक्योरिटी एज इन बॉन्ड्स. तो कीन्स ने तो प्रॉपर सिर्फ बॉन्ड्स को ही रखा था, बट इट कुड बी एनी फाइनेंशियल एसेट, इट कुड बी एनी कैपिटल एसेट इन टर्म्स ऑफ लैंड और एनीथिंग. बट इधर ज़्यादा खिचड़ी पकाने का ज़रूरत नहीं है. बेसिकली क्या है, मनी को हम अपने पास रख रहे हैं, क्यों? ताकि किसी भी बॉन्ड में या सिक्योरिटी में इन फ्यूचर इन्वेस्ट कर सके और हम प्रॉफिट मिल सके. दैट्स इट. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. इट इज़ द डिमांड फॉर मनी एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ. हम पैसा खुद के पास रख रहे हैं. So we are storing wealth in one way. अभी पैसा आपने अपने पास रख लिया और कल को आपको ऐसा कोई बॉन्ड मार्केट में आया जिस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आपने फिर वो ख़रीद लिया तो आपको इनकम अर्निंग हो गई. राइट. ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है. दिस वुड सफाइज क्या कि बॉन्ड वगैरह फ्यूचर में ख़रीदने के लिए हम ऐसा पैसे को अपने पास रखते हैं. तो अगर बॉन्ड पे ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा फ्यूचर में तो हमको इनकम जनरेट होगा. राइट. सो दिस इज़ इट. तो याद कर लीजिएगा, इट इज़ द डिमांड फॉर मनी एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ. स्टोर ऑफ वेल्थ इज़ आर कीवर्ड हियर. हम ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो बोलते थे मनी का कुछ और फंक्शन नहीं है. आप या तो उससे कुछ खरीदिए, अगर एमए पड़ी है तो मनी ईल्ड्स नथिंग. लेकिन फिर कीन्स ने बोला क्या नहीं, मनी का वैल्यू है, इवन इट वर्क्स एज ए स्टोर ऑफ वेल्थ. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो क्वाइट सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट एज वेल.
So I have explained all these things. Those of you with very inquisitive mind can try reading it on your own, but either way the explanation I have done. So let's move on to the last question now, which again is important. Which of the following statements is correct regarding the peer-to-peer lending? Very very important and simple as well. Number 1, पहले तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है. सो पीयर टू पीयर लैंडिंग इज अ फॉर्म ऑफ क्राउड फंडिंग यूज टू रेज लोन्स विदाउट प्लेजिंग सिक्योरिटी. तो ठीक है, लोगों से हम पैसा ले रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं रख रहे. सो अनसिक्योर्ड वे ऑफ availing money this is. Second, the interest rate is fixed by way of mutual agreement between the borrower and the lender. तो borrower ने और lender ने मिलके कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देना है या लेना है डिसाइड करेंगे. इज दिस व्हाट पीयर टू पीयर लैंडिंग इज? सो ट्राई टू रीड इट ऑन योर ओन एंड ट्राई टू कम अप विद द राइट आंसर. सो वी आर गोइंग टू लुक एट द सोल्यूशन नाउ. आंसर इज डेफिनेटली बोथ 1 and 2 बिकॉज इट वॉज रियली सिंपल. पीयर टू पीयर लैंडिंग में अगर मुझे पैसा लेंड करना है, किसी और को बोरो करना है, तो हम एक पोर्टल में जाएंगे, उधर डायरेक्ट बात करेंगे, बैंक बीच में नहीं आएगा. बैंक वुड नॉट बी एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी हियर. दिस इज़ व्हाट इट इज़. अभी बहुत ज़्यादा चलन पीयर टू पीयर लैंडिंग का हो रहा है बिकॉज बैंक बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एन इंटरमीडियरी चार्ज करता है. तो डायरेक्ट बोरो लैंडर लिंक में आएंगे तो कॉस्ट ऑफ अवेलिंग फंड एंड कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग फंड वुड बी लो. सेकेंड, इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली म्यूचुअली ही एग्री करेंगे और कोई इंटरमीडियरी तो है नहीं बीच में. दिस इज़ हाउ इट इज़. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस चीज़ के बारे में विच इज़ इंडीड इंपॉर्टेंट. तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये क्राउड फंडिंग है अनसिक्योर्ड लोन्स को अवेल करने के लिए. कोई कोलेट्रल नहीं, कुछ सिक्योरिटी नहीं होगा तो अनसिक्योर्ड तो वो बन ही गया. और रीपेमेंट तो डेफिनेटली इंटरेस्ट के साथ करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे भी करेंगे. कुछ चैरिटी तो चल नहीं रहा जो कोई फ्री में लोन देगा. दूसरा है इधर इट यूटिलाइज एन ऑनलाइन P2P प्लेटफॉर्म जो लिंक एज ए लिंक सर्व करेगा बोरोअर्स और लैंडर्स के बीच में. फिजिकली नहीं कोई आके आपस में म्यूचुअली एग्रीमेंट करेगा. एक पोर्टल होगा, ऑनलाइन वेबसाइट होगा. एंड RBI ने बोला है, कुछ डायरेक्शंस दी हैं, बट इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, इंटरेस्ट रेट तो म्यूचुअली एग्रीमेंट से ही फिक्स होगा बिटवीन बोरोअर एंड लैंडर. P2P प्लेटफॉर्म कुछ नहीं करेगा इसमें. वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है. दैट्स इट. RBI ने क्या डायरेक्शंस दिया है इधर? उन्होंने बोला है कि P2P प्लेटफॉर्म एक इंटरमीडियरी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये चीज़ें वो नहीं कर पाएगा. पहला तो वो डिपॉजिट नहीं रेज कर सकता. दिस इज ईदर वे सिंपल. हम बैंक से बच के P2P लैंडिंग में जा रहे हैं तो ये भी डिपॉजिट रेज करेगा, तो बैंक और इसमें कुछ फ़र्क ही नहीं होगा. ये लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता. दिस इज ईदर वे ऑब्वियस. क्रेडिट गारंटी नहीं कर सकता. मैंने लोन दिया, उस पोर्टल में जाके किसी ने लिया और फिर रीपेमेंट नहीं हो रही, तो हम पोर्टल को नहीं बोल सकते बिकॉज portal in fact cannot give any sort of guarantee here. It cannot permit any secured lending. कुछ आप collateral नहीं रखोगे. It cannot permit any international flow of funds. तो RBI का गाइडलाइंस है कि अब ये international flow of funds नहीं कर सकते परमिट. ये नहीं हम गए उधर USA का कोई इंसान हमको लोन दे रहा है उस पोर्टल पे बैठ के. दिस इज नॉट हाउ इट इज़. सो वी आर डन विद द 5 क्वेश्चन फॉर day 3 for prelims 2020. And if you haven't gotten over any of the question, then do let me know in the comment section. I'll try to explain it once again because all these 5 questions were important. So we are done. Thank you so much for watching and goodbye.